Hello everyone, this is Yamini Sani and today we are going to do class 9 subject science lesson 3 atoms and molecules. So we had done with this molecular mass and mole concept. So today we are going to start with formula unit mass. So what is it? Let's explore it. So the formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. The only difference, now pay attention to over here, ये उसके जैसा ही है जैसा हमने molecular mass किया था, but the only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. For example, sodium chloride, as discussed above, has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as 1 multiplied by 23 plus 1 multiplied by 35.5, which will give us 58.5 U. Okay. So this is it. This is the main thing, which is the difference between all of these, or we can say the difference between the molecular mass and the formula unit mass. Okay. So let us see one more example to understand it more clearly. So like अगर हमें formula unit mass निकालना है CaCl2 का, so what we are going to do, atomic mass of Cl रखेंगे plus 2 multiply में atomic mass of Cl कर देंगे. This is the same thing. Okay, the process is same, but the only difference is of like जो word formula बनेगा ना unit का for those substance whose constituent particles are ions, उसके जो ions होंगे वो particles होंगे उसमें. ठीक है. So now let us see the another thing. These questions calculate molecular masses of these one and calculate the formula unit masses of these one. So this is again the same. आपको कुछ भी नहीं करना, बस atomic mass की value लगानी है and add on करना है. So this you can do on your own. अगर कुछ भी problem आती है then you can write it down in the comment box. Now mole concept. This is the important topic, so pay attention to it. Mole concept. So what is mole concept? Let's take an example of the reaction of hydrogen and oxygen to form water. 2H2 plus O2 gives 2H2O. The above reaction indicates that two molecules of hydrogen combine with a one molecule of oxygen to form two molecules of water. राइट दो मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन के थे. दो कैसे पता चले हमें? ये जो है वो तो एटम के हैं, है ना, दो एटम के, और यहाँ पे हमने दो ले लिखा हुआ है, तो ये दो जो है वो मॉलिक्यूल को शो कर रहा है. और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2H2O फॉर्म हो, यानी कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बने हैं, क्योंकि दो यहाँ पे बड़े में लिखा हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ा. So second point is 4U of hydrogen molecules combine with 32U of oxygen molecules to form 36U of water molecules. अभी जो हम atomic mass, molecular mass, formula unit mass calculate करना सीखे हैं, उसी से हमें ये पता चला कि ये जो हमारा 4U के कैसे बना. ये 2H2 था ना, यहाँ पर आपका देखो ये था 2H2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो ये आ गया 4. इसका मतलब हो गया कि और हाइड्रोजन का वैसे क्या होता है, 1 होता है, तो 4U हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, O2 है. O का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 इंटू 2 कितना हुआ आपका, और यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो मल्टीप्लाई में अगर 1 कर दिया तो ये आपका कितना आया, यहाँ पर आया आपके पास 32, तो 32U आया. नाउ अगर 2H2O की अगर हम बात करेंगे तो वो अगर हम जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला यूनिट मास करना सीखा, मॉलिक्यूलर मास करना सीखा, वैसे करेंगे तो हमारे पास आएगा 36U. तो फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी characterized by its mass and the number of molecules, but a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of like number of its molecule or atoms rather than their masses. ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो एज अ
इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल या एटम देखें, अगर हम मासेस में देखते हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, राइट। तो इसीलिए मासेस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक एटॉमिक मास या फिर जो आई मीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, एटॉमिक मास अगर हम निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है। सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक जो न्यू मोल है वो एक न्यू यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज़ मोल, जिसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ any species or maybe like a atom या molecule, ion या particle is that the quantity in living in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ठीक है, तो मोल का मतलब हुआ कि उस चीज़ की, उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन पार्टिकल्स जो भी है, उसकी जो क्वांटिटी है वो नंबर में हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो वो उसके इक्वल है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड with a value of 6.022 multiplied 10 to the power 23. This is an experimentally obtained value. This number is called Avogadro constant or Avogadro number, represented by NO. ओके, जो एवोगाड्रो नंबर है वो इस तरह से शो किया जाता है। सो नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट अमीडियो एवोगाड्रो, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 नंबर। 1 डजन जो है वो 12 नॉस के, 1 क्रॉस जो है वो 144 नॉस के। सो बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ क्रॉस। दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो ये जो एडवांटेज क्या होती है कि जो भी मास ऑफ 1 मोल है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये मास की जो है बेसिकली हम कह सकते हैं एडवांटेज है, या क्यों हमने मास को इंट्रोड्यूस किया है। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम, दैट एलिमेंट इन atomic mass units. To get the mass of 1 mole of atom, that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the units from U to G. तो देखो अगर हम जो है सिर्फ उसकी जो यूनिट है वो चेंज कर देंगे U से G में। सो मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ एटम को ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन का 1 U होता है एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर सेम रहेगा, डिजिट सेम रहेगी, बट द यूनिट विल बी चेंज्ड। तो 1 G, 1 ग्राम। 1 U hydrogen has only 1 atom of hydrogen. 1 gram of hydrogen has 1 mole of atom or 1 mole atom. That is, जिसका मतलब क्या हुआ, 6.022 multiplied 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Similarly, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16U ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 atom of ऑक्सीजन। 16U जो 16U क्या है, इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जो है इसके अंदर हमारा एक ही ऑक्सीजन है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल ऑफ एटम के बराबर है। कैसे, अब हम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसे। टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, but simply change units as above from U to G. For example, as we have already calculated molecular mass of water, like H2O है, उसका हमें 18U निकालना है। So from here we understand that 18U जो है वो water has only 1 molecule of water, एक ही molecule है water का। तो 18 gram of water has also 1 molecule of water, तो इसकी क्या यूनिट होगी, अगेन 6.022 into 10 to the power 23 molecule of water। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपका एवोगाड्रो नंबर आपने निकाला है, जो आपने कांस्टेंट निकाला है, जो कि आपकी वैल्यू आई है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इन नंबर, वो सेम रहेगी।
chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction, and for this they need to relate the mass in grams. तो जिसके लिए जब भी वो रिएक्शन करते हैं तो उनको इनकी ज़रूरत पड़ती है कि कितने एटम्स, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसके लिए जो मास होता है ग्राम्स में वो मदद करता है उनकी. लाइक 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 0.022 × 10⁻23 नंबर. आई थिंक अब तक तो आपको ये लर्न हो ही गया होगा. सो रिलेटिव मास इन ग्राम्स है ये. दस द मोल इज़ द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट. तो जो मोल है वो एक केमिस्ट काउंटिंग यूनिट है. द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय विल्हेम ऑस्टवाल्ड. We can say Oswald also, who derived the term from the Latin word called moles, meaning a heap or a pile. A heap or a pile यानी कि एक ढेर. ओके, से ढेर लग जाता है ना किसी चीज़ का, ढेर. So a heap of a substance may be considered as a heap of atoms or a molecules. So the unit mole was adopted or accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. ओके, तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था 1869 में, और इसको जो एक्सेप्ट किया गया था दैट इज़ इन 1967. Although these dates are not important, but you can learn the name of the scientist who discovered the name or who gave the name mole, right? So let us see the example. Calculate the number of moles of the following 52 gram of He, finding mole from mass. अब इसमें हमें निकालना है मोल फ्रॉम मास. तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल हमने n लिया, गिवन मास जो है वो हमने स्मॉल m लिया, मोलर मास हमने कैपिटल M लिया, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी हमने कैपिटल N लिया. एवोगाड्रो नंबर को हमने n नॉट, जो यहाँ पे हमने देखा था n नॉट, इसको n नॉट बोलते हैं, तो वो हमने रखा. और अब हम इसे फिक्स करेंगे. तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम हमें पता है 4u होता है, तो हमने 4u लिखा इधर. मॉलिक्यूल जो मोलर मास है वो 4g हो जाएगा. अब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हमें पता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर दो, यानी कि n अगर हमें निकालना नंबर ऑफ़ मोल्स, ये स्मॉल वाला n अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M. तो स्मॉल m हमारे पास क्या है, गिवन मास. तो गिवन मास दैट इज़ 52. यहाँ पे जो गिवन है 52 ऊपर लिखा, और देन कैपिटल M क्या है, मोलर मास, जो कि हमें पता है मोलर मास हमारा 4 है यहाँ से, तो हमने 4 लिखा, 4 नीचे लिखा. देन हमें कैलकुलेट करना तो आ गया 13. सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखेंगे, 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. मोल निकालना है फ्रॉम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. तो एक मोल हमें पता है 6.022 × 10⁻23 होता है. तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल N, और एवोगाड्रो नंबर यानी कि n नॉट वो रखेंगे. n नॉट की वैल्यू हमें पता है 6.022 होती है, और n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमें गिवन है यहाँ पर 12.044. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 बचेगा. सो लुक, इट इज़ वेरी सिंपल, यू नो. You just have to place the formula and fix the values. Other things will be done on his own. Now let us see the next example, which we have 3.4. Calculate the mass of the following. 0.5 of N2 gas. N2 gas का निकालना है mass from mole of molecule. तो देखो mass is equal, mass क्या होता है हमारा, molar mass into number of moles. तो M कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय N. तो हमारे पास कैपिटल M क्या है, दैट इज़ नाइट्रोजन का हमें पता है N2 है, तो 28 हो गया. और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 0.5. तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 14g. नाउ सेकेंड पॉइंट देखेंगे, 0.5 मोल ऑफ N एटम मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम. ओके, अब सिर्फ n का देख रहे हैं, तो n का 14 होता है हमें पता है. तो हमने क्या किया, 14 मल्टीप्लाई में 0.5 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 7 ग्राम. नाउ थर्ड वन देखते हैं, 3.011 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ n एटम्स
मास फ्रॉम नंबर। अब मास फ्रॉम नंबर निकालना है। नंबर निकालने का क्या मतलब है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल N अपॉन में एवोगाड्रो नंबर रखेंगे। तो जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या है 3.011 इंटू 10⁻23 वो ऊपर रखेंगे n की जगह और एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे। देन सॉर्ट आउट करने के बाद एक और साथ में हम करेंगे कि m जो है वो भी निकालना है हमें साथ साथ। तो हम क्या करेंगे, इस जो 14 है हमारे पास यानी कि n एटम का निकालना है तो इसको साथ में ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो एक के साथ कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 14 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो आंसर हमारे पास 7 ग्राम आएगा। ओके, नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो N2 मॉलिक्यूल्स है तो सेम थिंग हमें करनी है इसमें भी। तो N2 है तो 14 2 से क्या हो गई 28 और ऊपर रखा हमने ये वाली वैल्यू यानी कि पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस वन। नीचे हमने रखा एवोगाड्रो नंबर और हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आया 28 ग्राम। Okay, I hope you are able to understand all this. If you are not, then just recap it or replay it. Okay, now let us see the example 3.5. Calculate the number of particles in each of the following. Now 46 gram of Na atoms, number of mass. अब नंबर फ्रॉम मास आपको निकालना है। 46 ग्राम Na एटम्स गिवन है तो n निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। n निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो यही सब की जो वैल्यूज़ है वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पे गिवन मास कितना है हमारे पास 46। मोलर मास क्या है हमारे पास, देखो Na है तो इसका हमारा 23 होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या है वो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स जो कि 12.044 इंटू 10⁻25। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अगेन द सेम थिंग, इसमें भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। दिस इज़ द सेम थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। हम 0.1 मोल है तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एटम के दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि n हमारे पास क्या गिवन है 0.1, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से जो कि है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और 23। देन अगर 0.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन आटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 आटम ऑफ कार्बन। तो सिमिलरली आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला you can do that. Okay, now which has more number of atoms, 100 gram of sodium or 100 gram of iron, given atomic mass Na and Fe is 56U. ओके, सो देखो आपको मोर नंबर ऑफ़ आटम जो है वो ये दिया हुआ है कि 100 ग्राम ऑफ अगर सोडियम है या 100 ग्राम ऑफ आयरन है तो आपको 23 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सॉर्ट करना है फ्रॉम दिस फार्मूला एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट। एंड कैलकुलेट करने के बाद अगर आयरन का ज़्यादा आएगा तो आयरन, सोडियम का ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा। अगर दोनों का सेम रहता है देन यू विल राइट दैट बोथ विल बी in the same amount. Okay, so just try this. If you don't be able to solve this, then just write it down in the comment box. I will solve it in the class. Okay, now what we have learnt in this chapter, तो एक बार ये देख लेते हैं। In this chapter we have gone through that chemical reaction is the sum of the masses of the reactant and products remain unchanged, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। देन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की हमने बात करी कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में जो मास है एलिमेंट्स का वो प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद हमने बात करी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक जो आटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसकी वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, लाइक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है।
that cannot usually exist independently and retain all its chemical properties. मतलब जो आटम जो है उसकी सिंगल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर जैसे कोई भी अगर इनडिविजिबल, ये हम कह सकते हैं कि इनडिविजिबल सब्सटेंस जो है वो हमारा आटम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारी आटम होती है. फिर मॉलिक्यूल्स है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिससे कि एलिमेंट और कंपाउंड बनते हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, राइट. नाउ केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट है. देन केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन आप यहाँ से भी ले सकते हो. एंड क्लस्टर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन्स. और जो they carry a fixed charge on them. The chemical formula of a molecular compound is determined by the valency of each element. So in ionic compound, the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound. So scientists use relative atomic mass scale to compare masses of different atom of element. Atom of like a carbon 12 जो है isotope are assigned. isobar के बारे में हम in further classes पढ़ेंगे. Okay. So this is the comparison which they have shown here. Then Avogadro number कि आपको हमें फॉर्मूला मिला है इसका कि क्या उसकी डिजिट्स होती हैं, क्या उसकी जो वैल्यू है वो होती है. देन हमने मोल के बारे में सीखा कि मोल क्या होता है एंड व्हाट इज़ मोलर मास, ये हमने बात करी. लाइक मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. ओके. देन हियर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है देन जस्ट राइट इट डाउन इन द